Hello students, today we are going to discuss the photoelectric effect. So the name suggests that the photo term is related to optics, that means light. Okay, the photo term is related to light, and the electric term related to electricity. So this phenomenon, from the name, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये फेनोमेनन लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है. तो कैसे रिलेटेड है? फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो तुम लोग देखो कि अगर एक मेटेलिक प्लेट मैं लूं, ओके, if we take a metallic plate and we incident a light beam on it, then some electrons from the surface of the metal will emit. Some electrons from the surface of the metal will emit. So these electrons which are emitted, that electrons are called photoelectrons. Okay. These electrons are called photoelectrons. So this phenomenon, that the light incident on the metallic surface and from the metallic surface electrons emits, this phenomenon is called photoelectric effect. Simple as that. Okay. So first question comes that किसी भी अगर लाइट मेटेलिक सरफेस पे गिरे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कि नहीं? तो देखो इसका आंसर है, द आंसर इज नो. If any light, any random light of random frequency incidents on the metallic surface, electron will not emit. Photoelectrons will not emit. Okay, photoelectrons will emit when a particular frequency incidents on the metal. That particular frequency, if that particular frequency incidents on the metal, that is okay, electrons will emit. And if that particular let's say that particular frequency is nu naught, we are denoting that particular frequency as nu naught. So nu naught is called the threshold frequency. So at threshold frequency the photoelectrons will emit, and if a light incident on the metal whose frequency is lesser than the threshold frequency, then photoelectrons will not emit. And if the light incident on the metal have frequency greater than the threshold frequency, then photoelectrons will emit. So how we gonna define the threshold frequency? So listen carefully. इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन कैसे करें? इसका एक मेथड है ऐसा कि जिस फ्रीक्वेंसी पे जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होने पर इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जीरो काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. दैट मीन्स if light of the threshold frequency incidents on the metal, the electron will emit with zero kinetic energy. That means the electron that emits from the surface of the metal will not have any kinetic energy. That means that electron's velocity will be zero. Okay, so if any light incident on the metal, that light's frequency, if it is greater than the threshold frequency, then which electrons will emit? Those electrons will have some velocity. So how we can get that velocity? That velocity we can get from this equation. See carefully.
let's say from Planck's constant we know the light of frequency nu naught have the energy E naught that is equal to h nu naught. Okay, if some light incident on the metal that have a greater frequency nu, which is greater than what? Which is greater than nu naught. Okay, then the extra energy that remains, extra energy, so this light's energy is E equal to h nu, right? This is the incident light. This is the incident light. So the extra energy that remains is delta E equal to h nu minus h nu naught, that is h into nu minus nu naught. So ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच रहा है इसका क्या होगा? ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगा? देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग m पकड़े, me, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is me, then the kinetic energy of the electron which emits with velocity v is half me into v square, half me into v square. So that is equal to the extra energy, which is h into nu minus nu naught. Okay, and this this v is called Vmax. That means the electron can be emitted from the metallic surface, with this velocity, and this velocity is the maximum velocity because electron doesn't emit with a single velocity. Okay, when a light incidents on a metal surface, जब metal surface पे light गिरता है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी लेके निकलते हैं वहाँ से, एक ही वेलोसिटी लेके नहीं निकलते, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन एक जैसा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते. जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकता है वही ये है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी का अगर हम एक्सप्रेशन निकालना चाहे इस इक्वेशन से, तो वो ऐसा निकलेगा कि v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2me into h into nu minus nu naught. So v equal to root over 2me into h nu minus nu naught. So this will be the maximum velocity that is possible for that electron. Okay, now we will discuss about the experimental setup of photoelectric effect. So let me erase this. So let us discuss about the experimental setup, how the experiment happens. So here is a hole from where the light will incident on this plate. The plate name is P. Okay, so light is incidenting on this plate. Light इस प्लेट पे गिर रहा है. अब यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. ठीक है, तो पूरा सेटअप समझ लेते हैं. ये है वोल्ट मीटर जो ये दोनों प्लेट का वोल्टेज डिफरेंस बता रहे हैं, और ये है एक एमीटर. एमीटर से हम लोग देख सकते हैं कि कितना करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है. ओके, ये जॉकी है, ये एक जॉकी है जिसके हेल्प से हम लोग ये दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी के लिए फॉर इनिशियल एक्सपेरिमेंट
we are taking these plates as zero potential difference. So P और Q के अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है. अभी अगर लाइट इसमें इंसिडेंट हो रहा है तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वेशन ये होगा कि एमीटर में हम लोग थोड़ा बहुत करंट देखेंगे कि हाँ इस सर्किट में थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो रहा है. फ्लो हो रहा है, क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि जब लाइट इस पे इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी लेके निकलेंगे. अगर ये लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नहीं हुआ तो, उसके अपर फ्रीक्वेंसी का हुआ तो निकलेंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वेलोसिटी लेके निकले हैं, तो वो वेलोसिटी वो मेंटेन रखेंगे और जाके इस प्लेट में रिसीव होंगे. तो अगर इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स रिसीव होंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है करंट फ्लो होना. तो हम एमीटर में करंट फ्लो होते देखेंगे. ओके, अब समझ लो कि हम ये दोनों प्लेट का अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस था जीरो. अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव. तो अगर नेगेटिव करेंगे तो फिर भी कुछ एक्सटेंट तक हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत करंट हमको दिख रहा है. एक वोल्टेज पे जाके हम लोग देखेंगे, एक नेगेटिव वोल्टेज पे जाके हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे करंट फ्लो जीरो हो गया. करंट फ्लो जीरो क्यों हो गया? क्योंकि देखो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? नेगेटिव कर रहे हैं इसके मुकाबले. तो ये क्या है? नेगेटिव है. ये क्या है? पॉजिटिव है. और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं? इस प्लेट से निकल रहे हैं. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव चार्ज है. तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के डायरेक्शन में ये क्या होगा? अट्रैक्टेड होगा. और नेगेटिव के डायरेक्शन से क्या होगा? रिपेल होगा. रिपेल्ड electrons will be repelled from this plate. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के दौरान इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी भी पहुंच रहा था, लेकिन हम लोग नेगेटिव को बढ़ाते गए तो ऐसा एक नेगेटिव वोल्टेज आया कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे जाके प्लेट पे रिसीव नहीं हो पाया और वो रिपेल होके वापस आ गया. इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन ये क्यू प्लेट पे रिसीव नहीं हुआ. इस कारण से हम लोग करंट क्या देख रहे हैं? जीरो. तो इसका अगर हम ग्राफ एक देखें तो ऐसा एक ग्राफ निकलेगा. देखो यहाँ पे हम लोग इस तरफ रखेंगे. अच्छा, हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग करंट देख रहे हैं, राइट. तो इस तरफ रखेंगे करंट और इस तरफ रखेंगे वोल्टेज डिफरेंस. ओके, तो वोल्टेज डिफरेंस हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले जीरो था, ये है जीरो वोल्टेज डिफरेंस. यहाँ पे हम लोगों को करंट दिख रहा था. इस बार हम लोग वोल्टेज को नेगेटिव कर रहे हैं. अगर वोल्टेज को नेगेटिव करें तो करंट का जो वैल्यू है वो गिरेगा और एक नेगेटिव वोल्टेज पे आके वो करंट जीरो हो जाएगा. तो ये जो नेगेटिव वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. मतलब इस वोल्टेज पे आके हमारा करंट जीरो हो जा रहा है. अगर हम लोग वोल्टेज को ज्यादा करें फिर क्या होगा? ज्यादा करने से करंट इंक्रीज होगा और थोड़ी देर बाद जाके सैचुरेट कर जाएगा. ओके, सैचुरेट कर जाएगा मतलब करंट का अगर अब हम लोग पॉजिटिव और करते रहे वोल्टेज डिफरेंस, करंट नहीं मतलब इंक्रीज नहीं होगा. उसका जो वैल्यू है वो सैचुरेट कर जाएगा, एक वैल्यू पे वो थम जाएगा. ओके, इसका डिटेल्स में मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि एक चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं और एक चीज़
अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, इट विल टेक फॉर वन स्मॉल पॉइंट इट विल टेक 10 to 15 minutes, तो सो द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल दैट. ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ क्या है. तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा. तो इस पोटेंशियल को हम लोग कह रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. और एक चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ लास्टली, क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं ज़्यादा और बता नहीं सकता. तो लास्टली मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक और इक्वेशन है, जो इक्वेशन जो क्वांटिटी है वर्क फंक्शन. और ये वर्क फंक्शन क्या है? ये वर्क फंक्शन जो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्कस कर चुके हैं पहले, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो एनर्जी होता है, मतलब वर्क फंक्शन को हम W से डिनोट करते हैं, और वर्क फंक्शन होगा H इंटू न्यू नॉट. ये न्यू नॉट क्या है? ये न्यू नॉट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे emission of photoelectrons begins, at which frequency, that frequency is called what? The threshold frequency. So the energy of that EM wave, that means H nu, that is called work function. Okay, so I am not discussing more about this, so thank you.